چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین آمین. تو پچھلا کلاس ہمارا چل رہا تھا مرکب اضافی. روشنائی ختم ہو رہی ہے. مرکب اضافی چل رہا تھا ہمارا. مرکب اضافی کا تعارف ہم نے کیا تھا کہ مرکب ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، جیسے زید کی کتاب، فاطمہ کی گاڑی، محمود کا گھر، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو مرکب اضافی بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. تو اس دن ہم نے کیا تھا زید کی کتاب کیا تھا ہم نے. ہاں کتاب پہلے آ گیا. زید کی کتاب، زید کی کتاب ہم نے کیا تھا. تو ہم نے دو پارٹس کیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ جس اسم کو نسبت دی جائے اسے ہم نے کہا تھا مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے اسے ہم نے کہا تھا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. عربی کا قاعدہ یہ تھا کہ پہلے مضاف آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. یعنی اردو میں جو شروع میں آتا ہے، مطلب زید کی کتاب، عربی میں الٹا ہو جائے گا، کتاب پہلے آ جائے گا، زید بعد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس مرکب اضافی کو ہم نے کہا تھا سمپل مرکب اضافی. سمپل مرکب اضافی. تو ہمارے پاس مضاف کا ایک اپنا رول آیا تھا، اس میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. مضاف کا رول یہ تھا کہ سب سے پہلے تو الف لام کا داخلہ منع تھا. دوسرا رول یہ تھا کہ تنوین، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تنوین، ٹھیک ہے، یہ بھی منع ہے، تنوین بھی نہیں آئے گی. جس اسم کے اوپر تنوین آتی ہے اس پہ یہ تنوین نہیں آئے گی، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کا جو ہمارا رول تھا وہ صرف ایک تھا کہ حالت جر میں ہی آئے گا. یہ تھا ہمارا سامنے میں، اسے سامنے میں رکھنا ضروری ہے، یہ تو پھر انشاءاللہ میں ضرورت پڑے گی. تو اب ہم بناتے ہیں مرکب اضافی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، دو تیر چلائیں گے. مضاف پہلے آ جائے گا تو کتاب کو ہم لکھیں گے، اور کتاب میں ال داخل نہیں ہوگا، اور کتاب ایک چونکہ واحد اسم مذکر، اس میں تنوین آتا ہے لہذا تنوین بھی نہیں آئے گی، اور زید بھی اس میں ہے تو حالت زر میں جو یہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آیا تھا کنسٹرکشن کتاب زیدین. ٹھیک ہے. تو ہم نے مختلف بہت طرح کے جملے ہم نے استعمال کیا تھا، مرکب اضافی ہم نے بنایا تھا. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مرکب اضافی اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پریکٹس کر کے آئے ہوں گے. ہم نے اس دن مضاف کو بھی واحد رکھا اور مضاف الیہ کو بھی ہم نے واحد رکھا تھا. لیکن بعض دفعہ ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا کہ مضاف جو ہے ہمارا کبھی مثنیٰ بن کر آ رہا تھا اور کبھی جمع بن کے بھی آیا. جیسے کہ ہم نے اس دن ایک مثال ہم نے لیا تھا کہ زید کی تو ایک کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کتاب ایک ہے، واحد ہے، اور زید بھی واحد ہے. تو زید کی ایک کتاب، اگر میں یہ کہوں کہ زید کی دو کتاب، تو کتاب کو ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کتاب کا مثنیٰ کتاب سے کتابانی. لیکن چونکہ مثنیٰ بن کر کے جب بھی مضاف آئے گا تو ہم نون اس کے ہٹا دیں گے تو کتابہ زیدین. تو دو کتاب ہمارا پاس بنا تھا تو کتابہ زیدین. اس کے بعد زید کے بہت سے کتاب، تو کتاب کا جمع مکسر استعمال کرتا تو ہم نے کہا تھا کتب زیدین. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے مثال بنایا تھا، اور پھر مذکر کا کلیئر کر لیں، مؤنث کا بھی ہم نے کلیئر کر لیا تھا. آج ہم
एक छोटा सा टॉपिक को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सिंपल मुरक्कब इजाफी का नाम देता हूं इसे, सिंपल मुरक्कब इजाफी, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे, लेकिन वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे, लेकिन दो पॉइंट है इंशाल्लाह, उसको क्लियर कर दो, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलते। देखिए, मुदाफ और मुदाफ इलैह को सामने में रखेंगे, हमें ये पता चल गया कि जब मुदाफ भी कभी मुसन्ना या फिर कभी जमा बनकर आ सकता है, तो हो सकता है कि कभी कतार मुदाफ इलैह भी जमा और मुसन्ना बनकर आ सकता है। मिसाल लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं इंशाल्लाह, इसे मिटेगा नहीं ठीक से। एक मिसाल लेते हैं, एक मिसाल हम ले लेते हैं इंशाल्लाह। मुसलमान का लड़का कौन बनाएगा? ऑडियो ऑन करके कौन बनाएगा मुसलमान का लड़का? वलदू मुस्लिमी, सही है, पक्का सही है। मुजाफ इलैह रफा में नजर तो नहीं आ रही? मुजाफ इलैह ये होता है जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। मुजाफ इलैह का हमारे पास रूल है, हालत जर में होगा, लेकिन क्या ये हालत जर में मुस्लिम के साथ जेर आ रहा है, ये सही है? दो जेर आएगा। अच्छा, मैं अगर इसे अल मुस्लिम कर देता हूं तो कोई प्रॉब्लम? मुजाफ इलैह के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं ना, तो हम इसे अल मुस्लिम कर लेते हैं, ठीक है। लगाएं अलिफ लाम, आप दाखिल करें, कहां दाखिल ना करें? जहां जरूरत नहीं है, जहां ममानियत है। ममानियत कहां पे है? ममानियत हमारे ऊपर है अलिफ लाम, कहां? मुजाफ के ऊपर। तो जहां मुजाफ है वहां आप अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। और एक जगह ममानियत है, वो कहां पे ममानियत है, कौन बताएगा? और एक जगह ममानियत है, अलिफ लाम का दाखिला और एक जगह मना है। अलिफ लाम का दाखिला और एक जगह मना है, फटाफट कौन बताएगा? अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिला मना है, चूंकि अलम ऑलरेडी मारिफा होते हैं। लेकिन 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 एक चीज को ध्यान में रखिए, बाज दफा अरब क्या करता है, अलम के ऊपर भी अलिफ लाम दाखिल कर देता है खूबसूरती के तौर पर। मिसाल के तौर पर शाम एक जगह का नाम है, मुल्क शाम जो है, तो शाम तो एक ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक अलम है और वो ही मारिफा है, लेकिन अरब क्या करता है, उसके साथ अशाम लगा देता है। तो वो अरब की खासियत है, अरब अगर किसी मतलब किसी अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल करता है तो हम दाखिल करेंगे, अपने मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे उन्होंने दाखिल किया है अलिफ लाम, हम उस जगह दाखिल करेंगे, जहां वो दाखिल उन्होंने नहीं किया है हम अपने मर्जी से दाखिल नहीं करेंगे। नॉर्मली हमारे ऊपर अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, अगर किसी मकामात पर उन्होंने अलम के ऊपर दाखिल किया है तो हम वहां दाखिल करेंगे। तो हमारे पास बनकर आया मुसलमान, मुस्लिम का लड़का, तो वलदु मुस्लिम, वलदुल मुस्लिमी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दो मुसलमान के दो लड़के, दो मुसलमान के दो लड़के, तो क्या बनेगा? पहले हम मुकम्मल करते हैं, पहले हम वलदानी को, वलद को दो कर देते हैं। वलदा हो गया, चलिए ठीक है, नून हट गया। अच्छा, और ये अल मुस्लिम क्या हो जाएगा? मुस्लिमानी हो गया, मुस्लिमानी तो हो गया हालत रफा के अंदर। अल मुस्लिम, अल मुस्लिम से अल मुस्लिमानी, दो मुसलमान, वो हालत रफा में हो गया। अब हमें हालत रफ, हाँ, हालत जर में लेके जाना, तो अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, वलदल मुस्लिमैनी, दो मुसलमान के दो लड़के। क्लियर हो गया? अब अगर मैं कहूं कि बहुत से मुसलमान के बहुत से लड़के, क्या बनेगा? बहुत से मुसलमान के बहुत से लड़के। तो पहले लड़कों को जमा लेकर के, तो लड़कों का जमा जो होता है
औलाद होता है ना। अब चूंकि औलाद एक जमा मुकस्सर है तो इसमें नून आता ही नहीं है, इसमें आता है दो पेश या दो जेर या दो जबर, ठीक है। तो दो पेश की जगह में क्या हो जाएगा, एक पेश। अलिफ लाम हमने दाखिल नहीं किया। मुस्लिम का जमा होता है मुस्लिमूना, और मुस्लिमूना का हालत जर मुस्लिमीना। तो औलादुल मिलाकर पढ़ेंगे तो मुस्लिमीना। अब यहां देखिए मुजाफ वाहिद बनकर आया, ठीक है। तो मुजाफ इलैह भी वाहिद बनकर आ गया, यानी एक मुसलमान का एक लड़का। अब अगर आया दो मुसलमान का दो लड़का, तो हमारे पास आ गया अल मुस्लिमैनी, और ये वलदा वलदा वलदानी में नून हट गया, नून ड्रॉप हो गया, तो हमारे पास आ गया वलदानिल मुस्लिमैनी। और बहुत से मुसलमान के बहुत से लड़के, तो हमारे पास आ गया औलादुल मुस्लिमीना। बस यही कंफ्यूजन को आप लोग क्लियर करना था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। औलादुल मुस्लिमीना। इसी तरह से आप लोग खुद बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मुस्लिम की बेटी, एक औरत, मुस्लिम की एक औरत मतलब एक लड़की, तो हो जाएगा बिंतु अल मुस्लिमती। तो मिलाकर पढ़ेंगे बिंतुल मुस्लिमती। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद ब खुद इंशाल्लाह कर लेंगे आप, ठीक है। ठीक है, चलो लिख रहे हैं आप। बिंतुल मुस्लिमती, बिन तानी होगा ये, तो बिन तानी में नून हट गया, बिनता अल मुस्लिमतैनी, बिनतल मुस्लिमतैनी, बनातुल मुस्लिमतीना, मुस्लिमातु सॉरी मुस्लिमाती, बनातु अल मुस्लिमाती। तो मिलाकर पढ़ेंगे बनातुल मुस्लिमाती। वो लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहां लिख देता हूं बना बनातुल मुस्लिमाती। ये कंफ्यूजन चेंज हो गया ना, आप लोगों का समझ में आया ना। जमा सालिम मुअन्नस का जो आतू की आवाज आती है, तो मुस्लिमातू हालत रफा में, और मुस्लिमाती अल मुस्लिमाती हालत नसब और जर में। यहां क्लियर हो गया। एक छोटा सा और पॉइंट एक छोटा सा और पॉइंट ये है, वो ये है कि जैसे कि मैं अगर आप एक सवाल करूं, मैं आप बोलूं अगर कि मस्जिद के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे, तो दरवाजा जमा को हम ले रहे हैं, तो जमा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अबवाबू, अबवाबू। और मैं मसाजिद, मसाजिद को मस्जिदों के दरवाजे, बहुत से मस्जिदों के दरवाजे, तो मैं मसाजिद को भी जमा लेकर आऊंगा। तो अगर मैं मारिफा बना करके नहीं, अलिफ लाम के बगैर लेकर आता हूं उसे, तो मैं उसे लिखूंगा मसाजी दा। हमने उस दिन पढ़ा था कि 3 डाइस बनाया था हमने, उस 3 डाइस के अंदर अगर वो फिट होता है, तो वो जैसा जमा मुकस्सर जो इसमें 3 डाइस के अंदर फिट हो जाए, उसे हमने गैर मुनसरिफ इस्मा कहा था। तो वो ये था कि अगर अलिफ से पहले 2 हरफ आए जबर के साथ, और उसके बाद 2 हरफ आए किसी भी अल्फा मतलब किसी भी हरकत के साथ, तो ऐसे जमा मुकस्सर को हम क्या कहते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। अब अगर मैंने अबवाबु मसाजिदा, ये तो सही हो गया, लेकिन अब एक चीज गौर करने की बात है। अब अगर मैं अबवाबु अल मसाजिदा कर दूं, क्या तब्दीली आपको नजर आई? तब्दीली क्या नजर आई, कौन बताएगा? हमने तो पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं, वो हालत जर में जेर कबूल करते ही नहीं है। वो तो हालत नसब में जबर भी होता है और हालत जर में भी जबर होता है, लेकिन अभी तो यहां जेर आ गया। जर में होना चाहिए। असल में ये क्या है कि गैर मुनसरिफ अस्मा था। हमने उस दिन गैर मुनसरिफ अस्मा की जो 12 कैटेगरी पढ़े थे, उसमें से हमने 3 डाइस बनाया था, हमने 3 डाइस।
उस डाइस के अंदर ऐसे जमा मुकस्सर जो उस डाइस के अंदर फिट हो जाता था, हमने उसे गैर मुनसरिफ कहा था। जैसे मदारिस, मसाजिद, ठीक है, मसाहबिह, वो तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ थे। तो हालत जर में मसाजिद जो आता है वो तो जबर के साथ शो किया जाएगा, लेकिन जब हम उस गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम का दाखिला हमने कर दिया, तो हमने देखा कि जब कभी भी गैर मुनसरिफ अस्मा पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो हालत जर में जेर कबूल कर लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर ले अच्छे से हरकत की, ठीक है। मतलब ये कि जब कभी गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर की जरूरत पड़े, जब उस पर रूल अप्लाई हो, यानी रूल अप्लाई इस वजह से हो रही है क्योंकि ये मुदाफिले बनकर आ रहा है और मुदाफिले पे जरूरी है कि वो हालत जर में आए। अब जब हम उसे हालत जर में लेकर आएंगे और अलिफ लाम लगा कर लेकर आएंगे तो वो हालत जर में जेर को कबूल कर लेगा। यानी अलिफ लाम में इतनी ताकत है कि उसके सामने हर कोई जेर हो जाएगा, जबर वाला भी जेर हो जा रहा है। तो ये बात क्लियर कर ले, इसको उस दिन स्किप हो गया था, स्किप क्या मतलब वक्त नहीं था, तो इसको ऐड कर दिया मैंने। ये दो चीजें हमने ऐड कर दिया। अब इंशाल्लाह अब हम आगे चलेंगे, किसके तरफ चलेंगे, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर ना हुआ हो तो समझाए, पूछे जरूर। उसकी वजह यह है कि पूरा कुरान मजीद में मुरक्कब इजाफी बड़ा पड़ा हुआ है। मुरक्कब इजाफी अगर आपको ना समझ में आए तो आपका अरबी सीखना जो होता है बेसिक ग्रामर, वो एकदम नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप। तो इसको आराम से समझिए आप फटाफट। अब वाबू हमने बाप का जमा लिया। अगर मैं सिर्फ बाबू कर देता हूं, अगर अब वाबू भी कर दूं या बाबू भी कर दूं कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो मसाजिद का नहीं होगा, फिर मसाजिद जमा नहीं होगा, क्योंकि मसाजिद जब हम जमा का लफ्ज इस्तेमाल करें तो दरवाजे भी जमा ही होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ अगर दो मस्जिदें लूं और दरवाजा एक लूं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अबवाबू लिया, ताकि मस्जिदों के दरवाजे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे औलादुल मुस्लिमीना लिया था हमने, ठीक उसी तरीके से अबवाबू मसाजिदा, अगर मैंने यहाँ पे अलिफ लाम के बगैर लाया तो मसाजिदा नॉर्मल गैर मुनसरिफ अस्मा, और हालत जेर में, हालत जर में जबर ही कबूल करता, जेर कबूल नहीं करता। लेकिन जब मैं गैर मुनसरिफ अस्मा को मुदाफिले बनाकर लाया अलिफ लाम के साथ, तो उसने हालत जर में जेर को कबूल कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि एक मिसाल ले लेता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान, तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान, मुसलमान पहले आ जाएगा, तो मुस्लिमू, और हिंदुस्तान पे वो लोग दाखिल करते हैं, सही है। अल हिंदुस्तानी, मुस्लिमुल हिंदुस्तानी, हिंद लिखते हैं कोई मसला नहीं है, वो हिंद भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर हम अपने लैंग्वेज में बनाए इसको हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तान ही लिखा जाएगा। अपने लैंग्वेज में अगर लिखें, वो हिंद ही लिखते हैं, सिर्फ मुकम्मल नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें इसको, मतलब होता ना बाज़ दफा कुछ चीजों का ट्रांसलेशन होता नहीं। अब चूंकि हिंदुस्तान एक शहर का नाम है, अब शहर का नाम वो हिंद लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में भी बोले तो हिंदुस्तान ही बोलेंगे, ठीक है। और इसको किसी भी लैंग्वेज में बोले तो हिंदुस्तान ही बोलेंगे। तो उसी तरह से हम अरबी को भी अरबी में ही हिंदुस्तान बोल रहे हैं। तो हिंदुस्तान चूंकि शहरों और मुल्कों का नाम था, और शहर अल मुल्क गैर मुनसरिफ अस्मा है, तो इसमें जबर नहीं आता, जेर नहीं आता, इस पे जबर आता आखिर में। लेकिन हम इस पे अल लगा कर लेकर आए तो वो हालत जेर में जेर को कबूल कर लिया, बस यही क्लियर करना था, ठीक है। चले अब इसको मैं मिटाता हूं इंशाल्लाह। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक क्या, बस उसमें कुछ ऐड करना, वो होगा पेचीदा मुरक्कब इजाफी। अब ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी क्या है, इसको क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। देखिए हमने जो मुरक्कब इजाफी अभी पढ़ा, उसको उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, या तो हमारे पास एक मुजाफ आ रहा था और एक मुजाफिले आ रहा था हमारे पास। हमने कहा था अगर मैं एक जुमला रखूं, हामिद का घर, मैं अगर रुकता हूं यहाँ पे जुमला एक, हामिद का, तो यहाँ मुजाफ कौन है और मुजाफ इलेह कौन है, हमें पता है घर मुजाफ है
اور حامد مضاف الیہ، یعنی ہمارے پاس ایک مضاف آیا اور ایک مضاف الیہ آیا. لیکن بعض دفعہ ایک سے زائد بھی تو مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں، یہ حامد کا گھر تو ہے. اب اگر میں اس کے ساتھ جوڑ دوں حامد کا گھر کا دروازہ، اب دیکھیے اس میں تو ایک سے زائد کا یہ آ گیا نا. اب میں اس کو حامد کے گھر کر دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ. حامد کے گھر کا دروازہ. اب یہاں مسئلہ ہو گیا، ابھی تو ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ ایک ہی آ رہا تھا، لیکن اب یہاں پہ 3 آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے مرکب اضافی کو ہم نے نام دیا پیچیدہ مرکب اضافی. اب ٹینشن آ گیا آپ لوگ کو، یار پہلے تو ہمیں حامد کا گھر ہی بنانا پڑ رہا تھا، گھر ہی بناؤ، اب تو دروازہ بھی بنانا پڑے گا اس کا. مطلب اتنا محنت کرو، محنت مزدوری کرو، اب کیسے بنے گا؟ اب اس میں ٹینشن آ رہی ہے آپ لوگ کو. چلو ایک تو مرکب اضافی جوڑ جبردستی کر کے سیکھ لیے جیسے جیسے کر کے، اب نیا آ گیا ایک پیچیدہ مرکب اضافی. تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، ایک دم آسان طریقہ ہے. ہم نے جب مرکب اضافی کو بنایا تھا تو ہمارے پاس 2 اسماء آئے تھے، ایک مضاف آیا تھا ایک مضاف الیہ آیا تھا. تو ہم نے 2 تیر چلایا تھا. اب چونکہ ہمارے پاس 3 آ گئے نا، تو ہم اب 3 تیر چلائیں گے. 3 کی کیسے تیر چلائیں گے؟ ایک چلائیں گے ایسے، ایک چلائیں گے ایسے، اور ایک سوجا. ہم نے 3 تیر چلا دیا. اس وقت ہم نے 2 تیر چلایا تھا، اس میں 3 تیر چلا دیا ہم نے. اب 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 سمجھنے والی بات، ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلے عربی کے اندر، اردو کے اندر جو پہلا آ رہا تھا وہ مضاف الیہ بن رہا تھا. تو چلو حامد تو مضاف الیہ بن گیا، یہ مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ بن گیا. اور جو آخر میں آ رہا تھا وہ مضاف بن رہا تھا، تو چلو اس کو بھی مضاف ہم نے بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچ والا ہے وہ کیا بنے گا؟ اگر میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں، کا دروازہ میں ابھی غائب کر دے رہا ہوں، 2 پل کے لیے سوچیے، کا دروازہ غائب ہے، میں بولوں حامد کا گھر، تو گھر کیا بن رہا تھا؟ مضاف بن رہا تھا. چلو ٹھیک ہے، گھر جو بن رہا تھا وہ مضاف بن رہا تھا. اب یہ حامد کا اڑا دیجیے. اب یہ حامد کا غائب کو کر دیا. گھر کا دروازہ میں اب گھر کیا بن رہا ہے؟ ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ جو بیچ والا میٹر ہے نا، یہ مضاف بھی بن کر آئے گا اور یہ مضاف الیہ بھی بن کر آئے گا. یعنی کہ اس مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ بن کر آئے گا اور اس مضاف الیہ کے لیے یہ مضاف بھی بن کر آئے گا. یہاں تک کلیئر ہوئی؟ سمجھ میں آیا سب کو بات؟ اگر میں یہاں تک رکھوں تو گھر مضاف آ رہا تھا اور حامد مضاف الیہ آ رہا تھا، تو حامد تو مضاف الیہ چھوڑ دیجیے. اب اگر میں حامد کے کو چھوڑ دیتا ہوں، گھر کا دروازہ جا رہا ہوں، تو گھر مضاف اب بن کر آ گیا، تو مضاف الیہ بن کر آ رہا. دروازہ تو مضاف پہلے سے آلریڈی ہے. یعنی کہ مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ میں جو ہوں سرفراز ہوں، تو میں اپنی امی کے لیے بیٹا بھی ہوں، میں اپنی وائف کے لیے شوہر بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. میں سرفراز تو میں اپنی امی کے لیے بیٹا بھی بن کر آ رہا ہوں اور میں اپنی وائف کے لیے شوہر بھی بن کر آ رہا ہوں. میں 2 کیریکٹر کو اپنا سکتا ہوں. تو ٹھیک اسی طریقہ سے یہ جو بیچ والا معاملہ ہے نا، وہ پہلا مضاف کے لیے وہ تو مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور بعد والا جو مضاف الیہ ہے اس کے لیے مضاف بن کر کے بھی آ رہا ہے. اب سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے، اب اس کا عربی ہم کنورژن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام کرتے ہیں، چلے پہلے مضاف کو ریڈی کر لیتے ہیں. پہلے سمپل کو ریڈی کرتے ہیں. دروازہ تو واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں باب، میں اس کے لیے باب استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے.
अब हम रूल अप्लाई करते हैं, अलिफ लाम हमने दाखिल नहीं किया, मुजाफ है, चूंकि मुजाफ में अलिफ लाम दाखिल का ममनू है, तनवीन हम नहीं लगाएंगे, यानी हम सिर्फ एक पेश के साथ हमारा मुजाफ रेडी, ठीक है। अब हम आते हैं मुजाफ इले की तरफ। मुजाफ इले एकदम सिंपल, मुजाफ इले हमारे पास क्या है, हामिद, और हामिद चूंकि मुजाफ इले और मुजाफ इले का हम हालत जर में रखेंगे, इसका रूल अप्लाई करेंगे, यानी हमारा मुजाफ इले जो आ गया वो आ गया हामिद दिन, ठीक है। अब आते हैं मुजाफ और मुजाफ इले, ये थोड़ा टेंशन वाली बात है। अब देखिए मुझे बताइए कि ये मुजाफ भी बनकर आ रहा है, मुजाफ इले भी बनकर आ रहा है। अब ये जो है ना, ये दोनों को रूल अप्लाई इस पर हो जाएगा। अब दोनों का रूल अप्लाई कैसे होगा, पहले हम बैत बना लेते हैं, घर का माना जो होता है बैत होता है, मैम पहले हम बैत लिख लेते हैं, बैत लिख लिया हमने। अब हम पहले दोनों का रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल अप्लाई करते हैं मुदाफ का, मुदाफ का रूल अप्लाई क्या हुआ, अकेले फलाम दाखिल हमने नहीं किया। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं हम कि तनवीन भी दाखिल नहीं होगा, चलो दूसरा भी हम रूल अप्लाई कर लिया फिल वक्त के लिए। दो रूल हमारा अप्लाई हो चुका। अब तीसरा रूल क्या है, वो तीसरा रूल है मुजाफ इले का, और मुजाफ इले के रूल ये है कि वो हालत जर में होगा, लिहाजा ये जो पेश हमारा आ रहा था, अब ये पेश हटके हालत जर में आ गया, हमारा रेडी हो गया बाबू बैती हामिदिन, बाबू बैती हामिदिन। किसको नहीं समझ में आया फटाफट बोले मैसेज में। बाबू बैतीन होगा अगर सिर्फ घर का दरवाजा अगर बना, अगर ये हामिद को गायब कर दिया, मान लीजिए ये बना मान लीजिए इस तरफ का बना, हम्म हम्म चलो हम दो बैत लगा दिए, चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे हम अलिफ लाम दाखिल कर दूं, अगर मैं बैत को अगर मैं कहूं कि बैत को मारिफा लेकर आ रहा हूं, मैं अलिफ लाम लगा दे रहा हूं, तो क्या कहना चाह रहे बताइए जरा। बाबू बैतीन आएगा, चलो ठीक है। हम्म ठीक है। ये तो आपको अभी अब ये जुमले में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर इसमें तकलीफ होगी। तो इसीलिए आसान तरीका ये है कि जो मैंने रूल यहाँ सामने रख दिया ना, वो रूल को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मैं और आसान आपको कर देता हूँ, ये जो तीर जो चल रहा है ना, हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको एकदम आसान करके बस समझाता हूँ। देखिए उर्दू में जो कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है ना, जब अरबी के अंदर हम जब मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, तो ठीक उल्टा कर देंगे। अब गौर करें आप, हामिद, घर और दरवाजा, पहले हामिद आया, फिर घर आया, फिर दरवाजा आया। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे उल्टा करेंगे देखिए हामिद यहां आ गया, घर बीच का बीच रह गया, दरवाजा यहां आ गया, यानी कि मुरक्कब इजाफी जो उर्दू में बनेगा, अरबी के अंदर मुरक्कब इजाफी ठीक उसका उल्टा बनेगा। अब हम इसको मिलाए, पीछे से मिलाना शुरू कर दे, हामिद का घर का दरवाजा, हामिद का घर का दरवाजा। जब ये बन जाएगा बस हमें ये तीन रूल को अप्लाई कर देना, सिंपल सा बन गया, एकदम सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आखिरी वाला जो हमारा एकदम आ रहा था वो दरवाजा, वो हमारा मुजाफ बनकर आया, और जो शुरू वाला हमारा बनकर आ रहा था वो हामिद, वो तो हमारा मुजाफिले ही था, मुजाफिले बन गया। बीच वाला भी जो मामला था वो पहला वाला मुजाफ के लिए मुजाफिले भी बनकर आ रहा था, और आखिर वाला मुजाफिले के लिए मुजाफ बनकर आ रहा था। लिहाजा जो बीच वाला मामला है उसको हम दोनों के रूल अप्लाई करके हमारे पास जो हमारे पास आया कि हम अलिफ लाम के बगैर लेकर आए। अगर मैं इसे सिर्फ मुजाफिले बना के लेकर आता तो मैं इस पर अलिफ लाम दाखिल करता, ठीक है, अल बैत कर देता, अल बैतीन, अल बैती कर देता, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मुजाफिले बना के लेकर आता,
मुजाफ ना बनाता, अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा था बाबुल बैती कर देता मैं, लेकिन अब चूंकि इस पे मेरे को इसका मुजाफ का भी रूल अप्लाई करना, तो मुजाफ का सबसे पहला रूल ये है कि अलिफ लाम हट जाएगा, और चूंकि हालत जर में उसे मुजाफ इलैहि को रखना, तो हम हालत जर में लेकर आ गए, और मैं अगर बगैर अलिफ लाम के लेकर आता तो वो इस तरह से होता, ठीक है। तो अलिफ लाम चूंकि ऑलरेडी नहीं था, तो हमें दूसरा रूल अप्लाई करना था कि उसकी तनवीन को गायब कर देना था, तो हमारे पास बैती आ जाता। बस यही सिंपल सा मामला है। मैं इंशाल्लाह और आपके सामने एक दो मिसालें रखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर एक ये रखूं तो रूल सामने लिखा रहेगा, बस यहाँ पे ऐड करता चलिए, और इंशाल्लाह आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा इसका तर्जुमा। मैं अगर कहूं कि अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी, कौन बनाएगा इसे? अल्लाह के रसूल की बेटी कौन बनाएगा इसे? एकदम सिंपल। देखिए हमारे पास सामने डाटा पड़ा हुआ, हमारे शुरू सिर्फ हमें उठाना है, अरबी का वोकैबुलरी उठाना है और रूल अप्लाई करना है। हम बनाते पहले मुजाफ रेडी करते, बेटी अरबी के अंदर बिंत कहते उसे, तो हमने मुजाफ के ऊपर डाल दिया बिंत, रूल अप्लाई करें अलिफ लाम का ममनू, अलिफ लाम हमने नहीं डाला, चूंकि बिंत एक वाहिद इसम है, दो पेश के साथ आता है, हमने तनवीन नहीं हटाना, तनवीन हटा देना, यानी बिंतु रेडी हमारा, ठीक है। मुजाफ इलैहि को रेडी करते हैं, अल्लाह, अल्लाह हालत जर में आ गया एक जेर के साथ। अब रसूल चुके ये मुजाफ भी और मुजाफ इलैहि भी बनकर आ रहा, तो लिहाजा हमें क्या करना है, दोनों का रूल अप्लाई कर देना, यानी अब हमें करना है पहले रसूल लिख लेते हैं हम, ठीक है। अलिफ लाम मना है, चूंकि ये अगर मैं मुजाफ इस पे अप्लाई करूं तो ये हालत रफा में भी हो सकता है, हालत जर में भी हो सकता है, हालत जेर में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसे मुजाफ इलैहि भी बना के लेना, यानी हालत जर में हमारा कंस्ट्रक्शन है। बिन्तु रसूलिल्लाह हमारा मुरक्कब इजाफी, इसका माना है अल्लाह, देखिए आप उल्टा कर रही है यहाँ पे ना, अल्लाह के रसूल की बेटी, ये ऐसे जा रहा है राइट साइड से, अब लेफ्ट से पढ़ना, अल्लाह के रसूल की बेटी। क्लियर हो गया सबको? एकदम सिंपल है, भरा पड़ा हुआ कुरान में। अभी आपको एक हदीस आप सामने रखूंगा, देखिएगा ये जबान पे बैठे बैठे आपको हदीस याद हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत मशहूर हदीस है, लेकिन है वो ज़ईफ, मैं रात में क्लियर कर दूंगा आपको, बहुत से लोगों की जबान में बैठी हुई है, वो भी इस्लाह करनी जरूरी है। हमारे पास आ गया बिन्तु रसूलिल्लाह, क्लियर हो गया सबको? किसी को ना समझ में मैसेज करे, माशाल्लाह। अच्छा अगर मैं यहाँ बेटी को हटा करके, अगर मैं यहाँ बेटी को हटा करके दुआ कर दूं, अल्लाह के रसूल की दुआ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? दुआ का दुआ ही होगा, दुआ रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की दुआ, दुआ रसूलिल्लाह। ये जो लफ्ज है ना रसूल अल्लाह, रसूलिल्लाह, इसे आप अच्छा मैं ये कहूं कि अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल, अगर एक चीज को क्लियर करता चलो आप लोग के लिए, नॉलेज के लिए, बहुत दफा हम गलत पढ़ देते हैं। देखिए हमारा जो मुजाफ है ना, मुजाफ में हमें छूट है, या तो वो हालत रफा में आ सकता है, या तो हालत नसब में भी आ सकता है, और हालत जर में भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मुजाफ हो या कोई भी इसम हो, अगर हम नॉर्मली बोले ना तो वो हालत रफा के अंदर बोला जाता है, नसब और जर में जाने की वजह होती है। जैसे अभी हमारे पास नजर आया कि हालत जर में कोई भी इस एक वजह से जा रही है, वो ये वजह है कि वो मुजाफ इलैहि है। जब भी कोई इस मुजाफ इलैहि की जगह पे आए तो उसे हालत जर में हमें शो करना है, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। उसी तरीके से अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ इस किसी वजह से वो हालत नसब या हालत जर में भी वो कबूल करेगी, बस दफा हालत नसब में भी आ सकता है। जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा था, मुब्तदा और खबर को रखा था, जब हमने मुरक्कबे ताम पढ़ा था, यानी जुमला इसमिया पढ़ा था हमने, तो हमने देखा कि मुब्तदा हालत रफा में ही होगा और खबर भी हालत रफा में होगा, था ना। आज हमने पढ़ा कि मुरक्कबे इजाफी में कोई भी इसम हालत जर मुजाफ इलैहि जब बनकर है तो वो हालत जर में ही शो किया जाएगा। अब अगर मैं ये नॉर्मली अगर
کہوں کہ اللہ کا رسول، تو میں رسول کو چونکہ رسول کے اوپر پیشی لگاؤں گا، یعنی حالت رفع میں شو کروں گا. اور رسول اللہ، اگر میں نارملی کہوں نا تو میں نارملی رسول اللہ ہی کہوں گا، رسول اللہ ہی کہوں گا. لیکن ہماری جو زبان سے پروناؤنس نکلتی ہے وہ رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں ہم، یعنی وہاں پہ ہم پیش نہیں پڑھ کر کے زبر پڑھ دیتے ہیں ہم، تو وہ پروناؤنس نارمل غلط ہو جائے گا. یہ حالت رفع میں جائے تو جائے گا ضرور، یہ تو جائے گا، لیکن نارملی اس کے پیچھے کچھ تو وجہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ آگے جائے گا. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسے، وہ کچھ اس کے آگے میں کچھ ایک ورڈ ایڈ ہوگا جس کی وجہ سے وہ حالت رفع میں جائے گا. لیکن نارملی جب ہم پروناؤنس کریں گے تو رسول اللہ ہی کہیں گے، رسول اللہ ہی نہیں کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروناؤنس اور لکھنے میں کتنا گڑبڑ ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ اللہ کے دو رسول، اللہ کے دو رسول، اب رسول کو ہم مثنیٰ بنائیں گے، یہاں بناتا ہوں میں. اگر میں رسول کو مثنیٰ بناؤں تو رسول آنی، رسول آنی ہوگا نا. اب رسول آنی میں نون ہٹا دو، چونکہ نون ایڈ نہیں ہوگا، مثنیٰ بن کر آ رہا تو رسول، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں یہ اگر میں حالت رفع میں رکھوں، اس میں اور اس میں پروناؤنس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہاں بھی رسول اللہ ہی پڑھ دے رہے ہیں ہم، یہاں بھی رسول اللہ ہی پڑھ دے رہے ہیں، جبکہ یہاں مانا یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ایک رسول، اور یہاں مانا ہو رہا ہے کہ اللہ کے دو رسول. کتنا ڈیفرنس آ رہا نا، ایک الف ایڈ، ہاں لانی تو آواز تو آ رہی ہے نا، لیکن چونکہ یہاں نون ایڈ نہیں ہو رہا. لیکن پروناؤنس کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ رسول اللہ ہی پڑھیں گے نا اسے بھی، اور اسے بھی رسول اللہ ہی پڑھیں گے. ہاں ڈیفرنس تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں لکھنے میں، ہاں بس اس چیز کو خیال رکھیے گا. بعض دفعہ ہم نے یہ غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھیں گے. ہم جب نارملی کہیں گے کہ اللہ کے رسول، رسول اللہ ہی پڑھیں گے، تو اگر ہم صرف نارمل پڑھیں گے تو رسول اللہ ہی پڑھیں گے، رسول اللہ ہی پڑھیں گے، رسول اللہ ہی نہیں پڑھیں گے ہم. اگر پیچھے کچھ اگر اس کا وہ وجہ ایڈ ہوگا جس کی وجہ سے حالت رفع میں جائے گا، حالت رفع میں سوری حالت نصب یا حالت جر میں جائے گا، تو وہ ایڈ کریں گے ہم اسے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بس ضمن میں نے بتا دیا. اچھا اب میں آتا ہوں، فٹافٹ کرتا ہوں، پھر ہمیں ایک بہت انپورٹنٹ ٹاپک بھی پڑھنا ہے. اب اللہ کے رسول کی بیٹی ہو گیا، اللہ کے رسول کی دعا ہو گیا، حامد کا گھر کا دروازہ بھی ہو گیا، یہ مٹ گیا. اب ہم ایک دعا دیتے ہیں، ایک چیز لکھتے ہیں کہ فاطمہ کے گاڑی کا رنگ، فاطمہ کی گاڑی کا رنگ. اب تھوڑا ٹینشن آ رہا ہوگا، گاڑی کا بھی ووکیبلری نکالنا ہوگا، رنگ کا بھی ووکیبلری نکالنا ہوگا، وہ ٹینشن نہیں ہے، میں نکال دیتا ہوں. پہلے ہم جو ہمارے پاس ہے پہلے مجھ سے ریڈی کر دیتے ہیں. فاطمہ، فاطمہ کو ریڈی کریں. فاطمہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، ہم نے اسے مضاف الیہ کے اوپر ڈال دیا. فاطمہ کیا بنے گا؟ فاطمہ کیا بنے گا؟ ہاں فاطمہ تی، فاطمہ تی بنے گا پکا. پکا کنفیوز نہ ہو. کہہ رہے فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرب مؤنث کے نام. غیر منصرف اسما میں عرب مؤنث کے نام ہم نے کیا پڑھا تھا؟ غیر منصرف اسما کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فاطمہ یا چاہے عائشہ، یعنی غیر عرب کے مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں. اور غیر منصرف کل ہی تو پڑھا نا ہم نے، پچھلی کلاس میں پڑھا کل مطلب. تو فاطمہ تا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رنگ کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں لون، ٹھیک ہے، لون لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں مضاف استعمال کر لیتا ہوں اسے لون، اور پیش کے ساتھ یعنی حالت رفع میں شو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لونو ہو گیا. اور گاڑی کو عربی میں کہتے ہیں سیارہ تھا، سیارہ. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ایڈ ہوگا؟ یہاں پہ زیر آئے گا، پیش آئے گا، یا پھر الف لام داخل ہوگا کہ داخل نہیں ہوگا؟ الف لام داخل نہیں ہوگا کیونکہ چلو ٹھیک ہے، مضافر زیر آئے گا. ماشاءاللہ بس ہو گیا.
लौनु सय्यारती फातिमा, अगर मैं वक्फा करूं फातिमा, अगर मैं वक्फा ना करूं फातिमा, तो लौनु सय्यारती फातिमा था, हो गया हमारा मुरकब इजाफी। जरा आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया। क्लियर है, एकदम सिंपल है, बस और कुछ नहीं करना है, बस हमें उठाना है। अभी हो सकता है कि चलो अभी 3 आ रहा है ना पेचीदा मुरक्कब इजाफी में, 2 मुजाफ आ रहा है, 2 मुजाफ इलैह आ सकता है। हो सकता है आगे जाकर के हम और भी सीखें, अभी 3 तक ही रखते हैं, हो सकता है आगे जाकर के 3 मुजाफ आ जाए, 3 मुजाफ इलैह आ जाए। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस हमारे पास जो अरबी उर्दू में जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास आएगा एकदम उलट कर देना, और एकदम उलट करके देखना है कि एक तो मुजाफ आएगा, फिर मुजाफ इलैह आएगा, फिर मुजाफ आएगा, फिर मुजाफ इलैह आएगा। अब जो मुजाफ आ रहा है उसके बाद वाला को मुजाफ इलैह भी आ रहा है, और उसके बाद वाला मुजाफ इलैह के लिए मुजाफ भी बनकर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मुजाफ आ रहा है, तो इसके लिए ये मुजाफ इलैह भी है, और इस मुजाफ इलैह के लिए मुजाफ भी बनकर आ रहा है। तो हमें मुजाफ इलैह और मुजाफ इलैह और मुजाफ का दोनों का रूल अप्लाई करके हमारे पास कंस्ट्रक्शन रेडी। फातिमा की गाड़ी का रंग, जैसे हमने बिंतु रसूलिल्लाह और दुआ रसूलिल्लाह हमने पढ़ लिया, उसी तरीके से फातिमा की गाड़ी का रंग भी लौनु सय्यारती फातिमा। तो एकदम सिंपल। अब हम आते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस की तरफ। बहुत मशहूर हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, और बहुत दिक्कत अंगेज हदीस है, गौर करने वाली हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम का नाम, मैं अगर यहाँ पहले उर्दू लिख दूं, आदम के बेटे के दोनों कदम, आदम के बेटे के दोनों कदम, आदम के बेटे के दोनों कदम, अरबी बना इसका, चले फटाफट बना। दोनों कदम मुसन्ना इस्तेमाल हो रहा है, तो मुसन्ना के लिए पहले हमें वाहिद जाना जरूरी है, और अरबी में कदम को कदम ही कहते हैं, तो हमने यहां बना दिया 2 कदम के बारे में आ रहा, तो कदम से कदम आनी, तो हम आनी में नू हटा देंगे, नून, तो हमारे पास आया कदमा, ठीक है, हमारा मुजाफ रेडी। आदम, क्योंकि आदम ही गैर मुनसरिफ अस्मा है, तो हमारा हालत जर में जबर आएगा। बेटा कहते हैं, वलद को भी कहते हैं, नॉर्मली जो हमारा इस्तेमाल होता है वो इब्न इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो हमने इब्न इस्तेमाल कर लिया। अब बताएं यहाँ पे ज़ेर होगा, पेश होगा, क्या होगा भैया? ज़ेर होगा, यानी हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन आया, आदम के बेटे के दोनों कदम। अब हमें मिलाना है, देखना, उल्टा करके चलना है कि आदम के बेटे के दोनों कदम, कदम इब्न आदम, कदम इब्न आदम, जामी तिर्मिजी के बहुत 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 मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजूलू, ला तजूलू मतलब नहीं हिलेंगे, एकदम, ला का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, मतलब एकदम से नहीं हिलेंगे, कदमत इब्न आदम, कदमा इब्ने आदम। और एक बात बताता चलो मैं आपको, ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ, इब्ने का जो अलिफ है ना, ये अलिफ ना हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल के बारे में आपने बताया था मैंने आपको कि हमजतुल वसल उसे कहते हैं कि बाज दफा अलिफ बन के भी आ जाएगा, जब हम पीछे से पढ़ेंगे तो वो अलिफ की सूरत में लिखा लिखा जाएगा, तो हम जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो कदम अब्नी आदम, कदम अब्नी आदमा। तो जामी तिर्मिजी की जो हदीस है 2416 नंबर, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तजूलू कदम अब इब्नी आदम, कि आदम के बेटे के दोनों कदम नहीं हिलेंगे, दोनों कदम नहीं हिलेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यौमल कयामती। अब मुझे बताएं, ये जो है यौमल कयामती, ये कौन सा मुरक्कब है? ये कौन सा मुरक्कब है? देखिए गौर करें, पहली बात हम पहचानने के तरीका हम देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो लफ्ज आ रहा है बगैर अलिफ लाम के आ रहा है, चलो ठीक है, एक निशानी मिल गया मेरे को,
दूसरा निशानी हमने तलाश किया तो हमने देखा कि अच्छा जबर आ रहा ना, यानी अलिफ लाम भी दाखिल नहीं हो रहा और तनवीन भी नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है मुजाफ है। कंफर्म नहीं है, अभी शक है। अभी हम कंफर्म उस वक्त करेंगे जैसे ही हम उसके बाद वाला इसम को देखेंगे हालत जर में और अलिफ लाम भी कबूल किया, यानी ये कंफर्म हो गया मुरक्कब इजाफी। यौमल कयामती मतलब होता है कि कयामत के दिन। मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी में हमने देखा कि ये अप्लाई हमने किया कदमा इब्ने आदमा, तो हम अगर मिलाकर पढ़ेंगे कदम इब्ने आदमा यौमल कयामती, देखिए एक हदीस के अंदर पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी आ गया, ठीक उसके बाद मुरक्कब इजाफी भी आ गया, ठीक उसके बाद मुरक्कब इजाफी आ गया। इसके बाद जो अरबी के अंदर जो लफ्ज मौजूद है वो एक और टॉपिक जब हम क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हदीस हमें पूरा मुकम्मल याद हो जाएगा। तो हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के दोनों कदम नहीं हिलेंगे यौमल कयामती, यानी कि उस हदीस में हमारे पास आया कि पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी इस्तेमाल हुआ और हमारा मुरक्कब इजाफी भी इस्तेमाल हुआ है। पहचानने का तरीका ये है कि नॉर्मल मुरक्कब इजाफी कैसे पहचानेंगे हम, वो इस तरह से पहचानेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला हमारा जो इस्म आ रहा है वो देखेंगे बगैर अलिफ लाम के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बगैर अलिफ लाम के साथ तो आ रहा है, चलो एक कंफर्म हो गया। दूसरा हमने देखा कि तनवीन भी नहीं है, हमें 90% श्योर हो गए ये पक्का मुजाफ है। कंफर्म 100%, जैसे ही हम देखेंगे बाद वाला इस्म हालत जर में है और अलिफ लाम के भी साथ आ रहा था, यौमल कयामती हमने देख लिया तो हमें पता चल गया कि मुरक्कब इजाफी है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी उसे कहते हैं जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह आए। पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनाने का तरीका ये कि हम जब अरबी कंस्ट्रक्शन को उर्दू कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे उसके हम 3 तीर चलाएंगे, लास्ट वाला को एकदम फर्स्ट कर देंगे और फर्स्ट वाला को एकदम लास्ट और बीच वाले को बीच पे रखेंगे। हमारा लास्ट वाला जो आता था उर्दू के अंदर वो पहले आता तो हमारे पास समझ में आ रहा था इसको हम जोड़ रहे हैं, यानी इसकी निस्बत कर रहे हैं किसी के साथ, तो जिसके साथ जिसको निस्बत जोड़े वो मुजाफ बनकर आएगा हमारा, और जिसके साथ हम निस्बत जोड़े जा रहे हैं वो मुजाफ इलैह बनकर आएगा। लेकिन जो दरमियान वाला है वो मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह भी बनकर आ रहा है और मुजाफ इलैह के लिए वो मुजाफ भी बनकर आ रहा है, लिहाजा इस पर दोनों के रूल अप्लाई हो जाएंगे। वो किस तरह से होंगे कि सबसे पहला बात तो हम उस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं करेंगे और तनवीर भी नहीं लेकर आएंगे, तनवीन जब नहीं लेकर आएंगे तो हालत जर में लेकर आएंगे, तो हमारे पास तीनों रूल अप्लाई करके हमारे पास ये लफ्ज हमारे पास मौजूद हुआ। ये है हमारा मुरक्कब इजाफी पेचीदा। और एक हदीस है उसको भी मैं इंशाल्लाह रखने की कोशिश करता हूं, इसको मैं पूरा मिटा दूं इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मिशकात की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दिलों को भी जंग लग जाता है, इन दिलों को भी जंग लग जाती है। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाज बताएं कि क्या क्या करे तो इस जंग को हम खत्म कर दें। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज वजाहत करता चलूं कि ये बहुत मशहूर हदीस है, बहुतों की जबान में बैठी हुई है, लेकिन ये रवायत ज़ईफ है, ठीक है। मैं जस्ट उसकी उसमें मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैं सामने में रख रहा हूँ, लेकिन इस चीज को क्लियर रखें कि ये जो हदीस है मिशकात की ये रवायत ज़ईफ है, कमजोर रवायत है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन दिलों को भी जंग लग जाती है जिस तरह से पानी को भी लोहे को जंग लग जाती है पानी लगने की वजह से। साहबा ने अर्ज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर हम क्या किया करें, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की कसरत का जिक्र, वहां लफ्ज है कसरतुल, देखिए यहाँ पे वहीं पे कसरतु जिक्री अल मौती, देखिए आप अप्लाई करें, देखिए वो जो रूल हमने पढ़ा था वो देखिए यहाँ पे नबी अलैहि सल्लम ने इस्तेमाल किया। कसरतु अलिफ लाम के बगैर, बगैर तनवीन की हालत रफा में रखा हुआ है। जिक्री चूंकि ये इसके लिए मुजाफ इले बनकर आ रहा था और इसके लिए मुजाफ बनकर आ रहा है तो इसमें अलिफ लाम भी दाखिल नहीं हुआ है और हालत जर में भी है, हालत जर में है। तो कसरतु जिक्री और ये चूंकि मुजाफ इले है इस पर अलिफ लाम भी दाखिल हो गया और यह हालत जर में गया, कसरतु जिक्रिल मौती। और आगे फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तिलावतिल कुरानी, व तिलावतुल कुरानी। देखिए यहाँ ऊपर में पेचीदा मुरक्कब इजाफी और नीचे में हमारा नॉर्मल मुरक्कब इजाफी, लेकिन मैं बार बार बता दूं ये रवायत ज़ईफ है, ठीक है, ज़िम्नन मुझे लाना था इसीलिए मैंने लिख दिया।
اور مرکب اضافی کا ہم تلاش کرتے ہیں تو ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، وہ تو ہر کسی کو یاد ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلوه الجنہ، لا يدخل الجنہ، کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں وہ شخص، کون؟ جس کے اندر من کان فی قلبہ، جن کے دلوں میں مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مثقال ذرۃ، یہ مضاف نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہاں پہ بغیر الف کے سام کے ساتھ، اور تنوین بھی نہیں ہے، کنفرم ہم نے کیا جب اس کا اگلا ہم نے حالت جر میں دیکھا، الف لام اس میں داخل نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب عرب کسی اسم کے ساتھ نکرہ استعمال کرتا نا تو وہ بہت ڈینجر بات ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ کسی دن وقت آئے گا یا پھر ہم پرسنلی کسی کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ معرفہ استعمال نہ کر کے بلکہ یہاں پہ نکرہ استعمال کیا۔ مثقال ذرۃ کا معنی ہوتا ہے کہ ذرے برابر بھی، اور یہاں معرفہ نہ استعمال کر کے نکرہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ذرہ برابر، مطلب ایک چھوٹا سا چھوٹا چوٹی دیکھے نا، چیٹی کی سائز کیا ہوتی ہے؟ چیٹی کی سائز کیا ہوتی ہے؟ چیٹی کی سائز نارملی ہم مشہور کر کے رکھے ہوا رائے کے دانے کے برابر بھی، لیکن میں اور آپ کو چھوٹے کر کے دکھاتا ہوں، اسی لیے یہاں پہ معرفہ استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں نکرہ استعمال ہے۔ چیٹی جو ہوتی ہے نا، چیٹی کی سائز مطلب یہ سائز کی ہوتی ہے، اور اس کا جو انڈا ہوتا ہے نا وہ بھی یہ سائز کی ہوتی ہے، مطلب اس سے بھی، مطلب اتنی برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوا نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قبر قال رجل، کہ ایک شخص نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ انی رجلا، کہ ایک شخص جو ہے یحب، پسند کرتا ہے، ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کے لباس جو ہو اچھے ہو، ثوبہ حسنا، ونالہ، اور اس کے جوتی حسنا، اور اس کے جوتی بھی جو ہو اچھے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ، یقیناً اللہ، جمیل، خوبصورت ہے، یقیناً اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اور تکبر یہ بھی نہیں ہے کہ تم اچھی جوتی پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق کی، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بطر الحق کی وغمت الناس، دیکھیے وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ تم، تکبر اسے نہیں کہتے ہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا پھر اچھی جوتی پہنو، بلکہ تکبر اسے کہتے ہیں کہ بطر الحق کی، یہاں دیکھیے بطر الحق کی، بطرو کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، اور یہ حالت رفع میں اور بغیر تنوین کے ساتھ، یعنی یہ مضاف بن کر آیا، اور الحق، الحق میں دیکھیے الف لام بھی داخل آ گیا اور زیر میں بھی نظر آ رہا، یعنی یہ کنفرم ہو گیا بطر الحق کی، یعنی حق کو چھوڑ دینا، حق کو چھوڑ دینا۔ بطر کا معنی ترک سے نکلا ہوا ہے، کہ بطر الحق یعنی حق سے اناد کرنا، غمت الناسی، اور انسانوں کو، یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انسانوں یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، بلکہ جب ہم یہ اچھے کپڑے پہن کر یہ محسوس کر رہے کہ یہ خراب ہے میں اچھا دکھ رہا ہوں تو یہ تکبر آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اگر کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی پایا گیا نا تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کا لفظ استعمال کیا، آگے جا کر کے ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ یہ جو لا ہے نا، یہ لائے نفی جب استعمال ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد جو خبر استعمال ہوتی ہے نا وہ اس کی کلی طور پہ نفی کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا دخل
لا यदखुलू, नहीं दाखिल होगा, हरगिज दाखिल नहीं होगा जिसके अंदर रत्ती बराबर भी ये तकब्बुर पाया जाए। अब मुझे बताइए किसके अंदर ये तकब्बुर नहीं है, तलाश करें आप, कौन बचा हुआ इस तकब्बुर से। तो हमने आज देखा 3 हदीसें हमारे सामने आई। नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस 2416, उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजालू, नहीं हिलेंगे, कदम इब्ने आदम, इब्ने आदम के दोनों कदम। अच्छा, एक रिवायत में कदम इब्ने आदम यानी एक कदम के बारे में भी आया हुआ है, और एक रिवायत में 2 कदम के बारे में भी आया, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं हिलेंगे कदम इब्ने आदम, इब्ने आदम के दोनों कदम, जब तक कि उससे 5 सवाल ना कर लिया जाए। ये 5 सवाल हम कैसे पता चलेगा, हमारे पास एक और टॉपिक है इसी पेचीदा मुरक्कब इजाफी में, लेकिन इंशाल्लाह आज हम उसको स्किप करते हैं। उसके बाद हमने एक और हदीस देखा, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाती है जिस तरह से लोहे को जंग लगती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज तजवीज़ फरमाया। उन्होंने कहा कि कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरान, पेचीदा मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी, लेकिन ये रिवायत है ज़ईफ। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक और हदीस, जो मशहूर हदीस मैंने अभी पढ़ा, मुस्लिम की हदीस है ये, सही मुस्लिम की हदीस है ना। तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके अंदर मिसकालु ज़र्रतीन, जर्रा बराबर भी अगर किसी के अंदर तकब्बुर हो तो वो जन्नत में दाखिल ला यदखुलुहुल जन्नह। और असल में तकब्बुर किसे कहते हैं, तो उसे नबी अलैहि वसल्लम ने डिफाइन किया, बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। ठीक है, तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जैद का घर, अगर मैं ये कहूं जैद का घर, ठीक है, तो आज हमें हालत जर वाली और हालत नसब वाली भी ज़मायर हमें याद करनी होगी। यहां हम ऐसे रखते हैं इंशाल्लाह। अब मुझे याद करवाएं, कौन है मुझे याद बताएगा कि वो जो ज़मायर मैंने याद करवाया था, कौन बताएगा। चलिए ठीक है, मैं इशारा करूं राइट साइड के लिए थर्ड पर्सन, मुजक्कर के लिए दायां और मोहन्नस के लिए बायां। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए मैं सामने इशारा करूंगा, एक उंगली के लिए सिंगल पर्सन, 2 के लिए मुसन्ना और बाकी के लिए जमा, खुद के लिए एक, और जमा और मुसन्ना के लिए मैं खात इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा इंशाल्लाह, बाकी सबको याद हो जाए। चले, ये ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, अना, नहनु। मोहन्नस से कौन बोलेगा, मोहन्नस से कौन सुनाएगा। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंतमा, ठीक है, ठीक है। यानी कि हालत रफा वाला जो हमारे जमायत था हमने याद कर लिया। अब आज हम सीखेंगे हालत नसब और हालत जर का जमायर। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं पार्ट डिवीजन नहीं करूंगा, आपको पता है कि शुरू हमारा थर्ड पर्सन से होता है, वाहिद होगा, मुसन्ना होगा और जमा होगा। फिर उसका निचला वाला हिस्सा उसी थर्ड पर्सन का मुअन्नस में आएगा, वाहिद, मुसन्ना, जमा। सेकंड पर्सन में आएगा मुजक्कर, वाहिद, मुसन्ना, जमा। सेकंड पर्सन में मुअन्नस आएगा, वाहिद, मुसन्ना, जमा। और फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम में आएगा वाहिद, वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस दोनों। आते हैं सबसे पहला थर्ड पर्सन की तरफ। मैं थोड़ा बहुत लिख दूं ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए। थर्ड पर्सन में लिखता हूं यहाँ पे, ऊपर में मुजक्कर लिखूंगा, नीचे मुअन्नस लिखूंगा। हमने रफा में
पढ़ा था कि जो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए, वो इस्तेमाल होता है हुआ। अब चूंकि अब हमें ज़मायर इस्तेमाल करना है हालत रफ़ा और नसब के अंदर, तो हालत रफ़ा और नसब के अंदर दोनों सेम होता है, और हुआ जो तब्दील हो जाके तब्दील होकर के बनेगा हु। हुआ तब्दील होकर के बन गया हु। अच्छा, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, मुसन्ना के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था हमने? तो वो हुमा का हुमा ही रहेगा, वो हुमा का हुमा ही रहा। चलो आसान पड़ गया आपका। थर्ड पर्सन जमा के लिए, मुजक्कर के लिए क्या इस्तेमाल किया था हमने? वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा मुजक्कर कंप्लीट। अब मुअन्नस की तरफ में आते हैं। मुअन्नस में ब्लैक से लिखता हूं। मुअन्नस के लिए हमने थर्ड पर्सन वाहिद के लिए क्या लिया था हालत रफा में? हिया। अब ये चेंज होकर के बन गया हा। ठीक है, चूंकि यहां तब्दील तो नहीं हुआ, तो लिहाजा यहां भी तब्दील नहीं हो, तो यहां भी हुमा। और जब यहां तब्दील नहीं हुआ और यहां तब्दील नहीं हुआ, तो यहां भी तब्दील, तो ये हो जाएगा हुन्ना। थर्ड पर्सन कंप्लीट हमारा। सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में वाहिद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे हम, इस्तेमाल करते हैं अंता। अब ये अंता चेंज होकर के हो जाएगा का। का इस्तेमाल हो गया। अब जब ये बदला है, तो सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, मुसन्ना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मुजक्कर के लिए अंतुमा इस्तेमाल करते थे। अंतु ही पूरा चेंज हो गया, का आ गया, तो अंतुमा हम उसमें सिर्फ मीम ऐड करते थे अंतु के साथ। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम? का से का को ऐड कर देंगे मीम के साथ, यानी कुमा। का कुमा। और जमा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुम। का कुमा कुम। अंता और अंति में क्या फर्क था? अंता और अंति में क्या फर्क था? जेर और जबर का फर्क था। तो हाँ, जब जबर और जेर का फर्क था, तो यहां भी हम जबर और जेर का ही फर्क करेंगे की। तो जब की आ रहा है और ये कुमा था, तो ये भी कुमा ही रह जाएगा, कुमा। और अंतुन्ना था ना वो, अब ये कुन्ना हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पर्सन भी कंप्लीट। अब हम आते हैं फर्स्ट पर्सन की तरफ। फर्स्ट पर्सन में हमने मुतकल्लिम खुद के लिए क्या इस्तेमाल किए थे? अना। अना तब्दील होकर के हालत नसब और जर में आ जाएगा या, और ये या कभी साकिन होकर आएगा और ये कभी जबर बनकर आएगा। कभी जबर के साथ आएगा और कभी साकिन के साथ आएगा। हमने फर्स्ट पर्सन के अंदर मुसन्ना और जमा के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया था, नहनु। नहनु इस्तेमाल किया था। इसमें जमा के लिए और मुसन्ना के लिए भी दोनों सेम इस्तेमाल होगा, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। ये भी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। इसके लिए इस्तेमाल होगा ना। फटाफट याद कर लिए। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। याद हो गया? यहीं तक याद रखें, इसको इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। इसको याद करें फटाफट, पहले याद करें आज। तुमको मिटा दो, उसके बाद इंशाल्लाह कल करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, याद हो जाएगा फटाफट। याद करके खुद से लिखिए तो बेहतर होगा जल्दी। याद हो गया? माशाल्लाह। कौन सुनाएगा? एक मुजक्कर से सुना दे, एक मुज़न्नस। याद हो गया? माशाल्लाह। चलो यहाँ सामने खड़ा हो जाते हैं। दिख नहीं रहा ना? हाथ पे जाके खड़े हो जाना, नहीं दिखेंगे। उधर नहीं दिखेगा, मेरे तरफ देखिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ,
हुन्ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। मोहनस की तरफ से कौन बोलेगा? जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, एक चीज बस उसको ऐड कर लीजिए। वो क्या है कि हमने जो हालत रफा और हालत रफा में जो जमायर पढ़ा था वो अलग से आता है, ठीक है, वो पहले आता है यानी मुब्तदा वगैरह में जगह में आ जाता, हमने मुब्तदा की जगह पर उसको इस्तेमाल किया था। ये जो जमायर है ना, ये जमायर ये अकेले नहीं आते कभी, ये हमेशा अटैच होकर के आएंगे। इस जमायर को कहते हैं अटैच जमायर, इसको कहते हैं अटैच्ड। हाँ, जिसको मुत्तसिल कहते हैं, मौसूल भी कहते हैं, हाँ मुत्तसिल भी कह सकते हैं इसको। ये अटैच जमायर होता है, ये किसी भी इसम के साथ जुड़े हुआ आएगा। अब ये का कुमा कुम, ये जो लफ्ज है ना, हा हुमा हुम, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर हम मुजक्कर को मुअन्नस बना देते हैं और मुअन्नस को मुजक्कर बना देते हैं, वाहिद को जमा बना देते हैं और जमा को वसन्ना बना देते हैं। हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब हम नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जब हम सहाबा कराम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सहाबा कराम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं रजी अल्लाह ताला अन हु, अन हु। वो जो हु की जमीर है ना, वो हु है। बहुत तो क्या करते हैं, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन हु, रजी अल्लाह ताला फातिमा को भी बना देते हु, जबकि हु नहीं होगा, वो हा होगा। तो गौर करेंगे जब कभी हदीस के अंदर लफ्ज आए ना, या फिर कभी भी कोई इस्तेमाल करे, तो वहां गौर करे, देखिएगा वो मर्द के साथ अन हु लगाएंगे और औरत के साथ अन हा लगाया करेंगे, लगाते हैं ना। और अगर नबी अलैहिस्सलाम सॉरी दो सहाबा का जिक्र नाम किया जाए, जैसे उमर इब्न अल खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक, तो वहां वो इस्तेमाल कर रजी अल्लाह ताला अन हुमा। और अगर बहुत से सहाबा का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे अन हुम इस्तेमाल करते हैं, बहुत से सहाबा का लफ्ज इस्तेमाल करें तो अन हुम। और अगर दो मुअन्नस सहाबियात का नाम जिक्र होगा तो अन हुमा, उनके लिए भी चलो हो गया। अगर बहुत से सहाबियात के बारे में जिक्र हो सिर्फ, और उसके साथ हम रजी अल्लाह ताला अन हुन्ना लगाएंगे। अन हुन लगा देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हुन के अंदर मर्द औरत सब आ जाते हैं, लेकिन अगर स्पेशली अगर उसको डिवाइड करने की कोशिश करें, अगर हम हो रहे रिकॉर्डिंग, अगर हम उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ना, तो हुन्ना का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकली सही है। अब हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जज़ाक अल्लाहु खैर। लड़के को भी अगर हम जज़ाक अल्लाह कहें तो जज़ाक अल्लाहु खैर बोल देते हैं, लड़की को भी कहें तो जज़ाक अल्लाहु खैर बोल देते हैं। जबकि लड़का के लिए हम जो जज़ा का जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो जमीर है, और अगर का इस्तेमाल करें तो वो लड़का को हम करें जज़ाक अल्लाह। अगर हम लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जज़ाकिल्लाह ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को आइंदा से ख्याल रखें आप, बहुत बेसिक सी नॉलेज है और ये बहुत गलती करते हैं हम। अगर मैं बहुत से लोगों को बहुत से लोग क्या करते हैं, एक को कहते हैं और बोले जज़ाकुमुल्लाहु खैर, जज़ाकुम जो लफ्ज इस्तेमाल करें वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल करें। हम बहुत से जब लोगों को जज़ाकल्लाह खैर देंगे, जब उनको जज़ाक खैर देंगे हम, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है। लेकिन अगर वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जज़ाकल्लाह मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए जज़ाकिल्लाह, और अगर बहुत से हैं तो जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। इंशाल्लाह बारकल्लाहु फी, ये भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इया की या इया का, ये जो आप समझ में आ रहा ना आप लोग को कि का और की में कितना बड़ा फर्क है। एक मुज़क्कर को मुअन्नस बना देते थे, मुअन्नस को मुज़क्कर बना देते हैं। तो इस चीज को इंशाल्लाह ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम वो जो था ना मुज़ाफ इलैह में ज़माइर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हालत जर वाली ज़माइर हमारे पास सामने आ गई है, तो मुज़ाफ इलैह के ऊपर हम हालत जर में इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो क्लास था हमारा यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कर ले, व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।